This is the first session, first lecture of company law, in which we are going to cover definition of company, distinction between company and partnership, and types of company. So these are the topics that we're going to cover in this session. There are around 3 to 4 questions, not more than that, 2, 3, 4, max to max questions that come, maximum 5. In fact, itna bhi nahi hoga, but something 3 to 4 questions that come from company law in your CLAT. So, but every question holds significance, right? So we have to start with it. First of all, the thing is you have to understand about what exactly is company. The word company, it is technical. If you would want to understand the meaning of company, it is nowhere specifically mentioned, just in the elaborate form. But then just to understand it, we have to read the definition that has been given by various scholars, various jurists that have given their particular definition to it. Basically, in a company, there is an association of people, and those association of people, they are working towards a common goal. They're working towards a common goal to achieve, and that common goal is basically to generate profit out of the business, whatever they're doing, right? So the purpose is basically just to associate themselves with multifarious and include economic as well as non-economic objectives. But in common parlance, if I say the word companies, normally reserved for those associated for economic purpose, like I told you, to carry on the business for gain, just to get enough of profit out of the company, right? So another thing is that the association of people is going to be a voluntary association of people. And that voluntary association means that they willfully, they want to come together and work on certain areas, certain business, and then to share the profit. So two main types of organizations in Indian law, if we study, so there is one, partnership and company, right? That will understand the difference between a partnership and a company, that we will be covering in the later stage in today's session only. So the act does not define. See, first of all, where is company defined? It is 2 clause 20 is where it is defined. 2 clause 20 is where the definition is defined. Of Companies Act defines company to mean a company incorporated under the act. कौन सा Companies Act 2013 के अंदर जो 2 clause 20 का सेक्शन है, उसमें कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन करी गई है, और ये डेफिनेशन में क्लियरली कहीं पॉइंट आउट नहीं करा एग्जैक्टली द मीनिंग क्या है. सो कुछ डेफिनेशन, जैसे मैंने कहा कि हम लॉर्ड जस्टिस लेंडले की एंड चीफ जस्टिस मार्शल एंड प्रोफेसर हैनी का, इनकी डेफिनेशन को हम समझते हैं. ये कहते हैं, लॉर्ड जस्टिस लेंडले कहते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल फर्स्ट, देन who contribute money, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉमन स्टॉक में, एंड एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड या बिजनेस, एंड उनका प्रॉफिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अपना प्रॉफिट और लॉस को दोनों ही शेयर करेंगे. एंड द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू इट और टू whom it permits are member, वो उसके मेंबर्स भी होते हैं इस कंपनी के. The proportion of capital to which each member is entitled is his share. जितना जिसका शेयर है उतना उस पर्सन का proportion माना जाएगा ऑफ कैपिटल, ठीक है. द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल, और शेयर को हम ट्रांसफर कर जा सकते हैं. ऑल्दो जो राइट है वो थोड़ा सा मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड है, कितना आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड राइट देता है. ओके, नेक्स्ट इज आर चीफ जस्टिस मार्शल. ये कहते हैं अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, a corporation is an artificial being, invisible, intangible. ये कहते हैं invisible है और intangible है, you cannot just touch it, existing only in contemplation of the law, being a mere creation of law, and it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. तो एक आर्टिफिशियल, जब हम इसको कंपनी लॉ का जो फीचर भी पढ़ते हैं,
तब भी इसमें एक हम पढ़ते हैं कि इसका what is the meaning of it, right? What are the feature is that it is the artificial person, right? इनविजिबल है और ना ही आप इसे टच कर सकते हैं। इसका जो एग्जिस्टेंस है ये सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ चार्टर है, और जहाँ पे इसका जो एक ये परपेचुअल इन नेचर भी होता है। कभी भी अगर कोई इवन द ओनर इफ डाइज द कंपनी स्टिल विल स्टे, इवन ऑल द ह्यूमंस ऑन द अर्थ विल डाई, स्टिल द कंपनी विल बी स्टेइंग। प्रोफेसर हैनी कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate entity with perpetual succession and common seal। देखो इसने बहुत सारी बातें कर दी। नंबर 1 बात करी इन्होंने कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है मतलब ये स्टिल सू कर सकते हैं एंड कैन बी सूड ऑल्सो। सेपरेट एंटिटी होती है, ओनर से अलग होती है। जब भी हम कोई किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सेपरेट, वो कंपनी के नेम से जाता है, ना कि उसके ओनर के नेम से जाता है, राइट। और परपेचुअल सक्सेशन है इसकी, कभी भी ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है कंपनी। और ये कॉमन सील होती है इसकी। अब जो भी याद है वो स्टैम्प होता है, आपने देखा होगा कि स्टैम्प होता है, वो स्टैम्प एक कॉमन सील होती है जो पूरी, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो किसी, ठीक है, तो उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन उसमें एक कॉमन सील जाता है, वो कंपनी का जाता है, और वो कॉमन सील माना जाता है कि ये कंपनी का एसेंट है इस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंपनी में अगर हम समझे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसका है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। पहले तो सेपरेट एंड लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब है। चलो वन बाय वन हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब ये है कि कंपनी को सबसे पहले तो भाई रजिस्टर तो होना ही चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इनफैक्ट द फर्स्ट प्रोसेस उसका माना जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, देखो अगर पब्लिक कंपनी तो 7 होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होने चाहिए। और अगर मिनिमम नंबर 7 या 2 से कम हो गए हैं और स्टिल ये कंपनी रन कर रही है, तो जो उनके जो ओनर या फाउंडर होता है कंपनी का, उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ द कंपनीज, ड्यूज या डेट्स ऑफ द कंपनी के जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर लेवाए हो जाते हैं। सेक्शन 3 अगर हम पढ़ें कंपनीज एक्ट का, तो ये कहता है कि आप 1% कंपनी भी बना सकते हो कंपनीज एक्ट का। तो 1% कंपनी किधर मेंशन्ड है, अगर क्वेश्चन है तो आपका सेक्शन 3 इसका आंसर आएगा। सेकंड जो इसका फीचर है वो है लीगल एंटिटी जो है ये डिस्टिंक्ट, इसके जो मेंबर्स हैं उससे डिफरेंट रहता है कंपनी का। फॉर एग्जांपल अगर यही कंपनी है, लीगल स्टिक्स है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे लीगल स्टिक्स से, ठीक है ना। अनलाइक पार्टनरशिप द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन जो उसको बनाते हैं, ठीक है। हेंस इसीलिए ये इट इज केपेबल ऑफ एंजॉयिंग राइट्स एंड ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू ड्यूटीज। सब्जेक्टेड टू ड्यूटीज पे भी उसका एक रहता है, विच आर नॉट द सेम। जो भी मेंबर्स जो होते हैं और जो कंपनी के, इन दोनों के ड्यूटीज और राइट्स सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैग्नॉटन की अगर हम इन्होंने इनकी एक बात सुनी इसी से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि द कंपनी इज एट लॉ और डिफरेंट पर्सन है ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। इट हैज सेड दैट डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करी है, डिफरेंट है। Though it may be that after incorporation, the business is precisely the same as it was before, and the same person or managers in the same hands receive the proceeds. The company is not in law the agent of subscribers. The agent नहीं है और trustee नहीं है, उनकी नहीं होती, different separate legal entity होती है इनकी. Nor the subscribers are liable in any shape or form except to the extent in the manner provided in the act. ओके ये हमारा सोलोमन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस हमारा कंपनी लॉ का माना जाता है। अब ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। कंपनी को हम हमेशा बोलते हैं कि ज्यूरिस्टिक पर्सन भी है, ज्यूरिस्टिक पर्सन भी है, बट इसमें क्या है कि कोई नेचुरल बीइंग नहीं है इसमें कोई, बिकॉज मेंबर्स नेचुरल बीइंग है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये बस लॉ में इसका जो लॉ में ही एग्जिस्टेंस है। सो ये क्या करता है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है अपने काम को करवाने के लिए नेचुरल पर्सन पे, मतलब मेंबर्स पे डिपेंड करता है। मेंबर्स पे डिपेंड करेगा, ना कि खुद पे, क्योंकि ये तो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है।
तो डिपेंड किस पे करता है, क्योंकि जो इसको काम करना पड़ेगा, मान के चलो कि इसको अगर कोई अपने एम्प्लॉयज हायर करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो ये इसके मेंबर्स ही तो काम करेंगे। ये कंपनी क्या खुद बैठ के कर देगी? नहीं, बिकॉज वाई, बिकॉज ये खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये खुद ही काम नहीं कर सकते। ओके, एंड जैसे कि किन पे डिपेंड करना पड़ता है इसको, डायरेक्टर पे डिपेंड कर देगा, ऑफिसर्स पे कर देगा, ये शेयर होल्डर्स है, इन सब पे डिपेंड कर देगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स ओनली रिप्रेजेंट द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली वट एवर दे डू विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन देम एंड इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दे बाइंड द कंपनी एंड नॉट देमसेल्फ। ये कंपनी को बाइंड करेंगे बट अपने आप को बाइंड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि माना जाता है कि वो काम तो कंपनियां कर रहे हैं और कंपनी अपना काम अपने उनके बिहाफ पे अपना काम करवा रही है। फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, जिसकी लायबिलिटी जितनी है, जिसके पास जितना शेयर होल्ड कर रहा है, उसकी लायबिलिटी, अगर किसी के पास 14% शेयर है तो उसकी लायबिलिटी, ठीक है, वो 14% तक ही रहेगी। उससे ज्यादा ना ही वो प्रॉफिट ले सकता है और ना ही वो लॉस इतना बेयर करेगा, इतना ही वो कर सकता है। एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग थ्रू मीडियम ऑफ लिमिटेड कंपनी का फायदा ये रहता है द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर ओनली लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इट्स डेट्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लिमिटेड एक्सटेंट मतलब जितना उनके पास शेयर है, जितना भी शेयर वो होल्ड करते हैं। अब मान के चलो कोई कंपनी है, कुछ है लिमिटेड बाय शेयर्स है, कुछ होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं पहले। The shareholder's liability to contribute is measured by the nominal value of the share he holds. जितना भी शेयर वो होल्ड करता है पर्सन, उतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है। So that once he or someone who held the shares previously has paid the nominal value plus any premium अगर agreed करा गया है, then he is no longer liable to contribute any further. फिर वो further उसका 14% के बाद वो contribute नहीं करेगा। अब क्या है कि इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे टिल द लायबिलिटी, टिल कंपनी की सारी लायबिलिटी पे नहीं हो जाती ना, तब तक नहीं होगा। और 14% तक के अमाउंट की ही लायबिलिटी को वो पे करेगा अगर वो लिमिटेड बाय शेयर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा आपकी लायबिलिटी बन जाती है। However, the companies may formed with unlimited liability of members. In such a case, liability of members shall not be limited to the nominal face value. Face value जैसे 14% बताया था ना मैंने, of their shares and premiums if unpaid. उतना ही नहीं है, उससे ज्यादा, ये तो उससे ज्यादा भी रहेगा। जब तक वो सारी लायबिलिटी पूरी नहीं हो जाए तब तक उनकी लायबिलिटी टू पे बनी रहेगी। देन इज इन केस ऑफ कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। सी गारंटी मतलब ही शैल बी कॉन्ट्रीब्यूट अप द अमाउंट, जो जितना भी गारंटी उसने कराया, मान के चलो कि मैं 20% तक का ही अमाउंट के लिए लायबल लूंगा, तो उतना ही अमाउंट, यहाँ पे उसने शेयर होल्ड नहीं करे बट गारंटी दी है, तो उतने परसेंट जितनी उसने गारंटी दी है उतने ही अमाउंट के तक वो लायबल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज इफ द गारंटी कंपनी ऑल्सो हैज शेयर कैपिटल। If the guarantee company also has share capital, the liability of each company shall be determined in terms of not only the actual guarantee but also जहाँ पे guarantee company share capital में guarantee plus share capital दोनों आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी में देखिए, ये हमारा सेक्शन 3A के साथ एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था 2017 में। अगर किसी भी टाइम पे इसमें प्रोवाइडेड ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में अगर किसी भी टाइम पे अगर पब्लिक कंपनी में अगर जो मेंबर्स है वो लेस देन 7 है और प्राइवेट में लेस देन 2 हो गए, क्योंकि 7 और 2 तो मिनिमम है, बट कभी किस कंडीशन में इनसे कम हो गए तो क्या होगा, और वो जो बिजनेस है वो मोर देन 6 मंथ्स चला जा रहा है, मोर देन 6 मंथ्स उन्होंने कम मेंबर के साथ साथ भी मोर देन 6 मंथ्स तक चलाते रहे बिजनेस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एंड ये चीज अवेयर है कि ये ऐसा ऐसा हो रखा है, लेस देन 7 मेंबर्स या लेस देन 2 मेंबर्स के साथ कंपनी के अफेयर्स को काम कराया जा रहा है, अफेयर्स चलाए जा रहे हैं। देन ये क्या होगा, जो सारे मेंबर्स है दे शैल बी सीवियरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट। वो सारे के जितना भी डेट है उस सब के लिए वो सीवियरली लायबल होंगे, ठीक है। Now the separate property is shared or not shareholders are not in the eyes of law पार्ट ओनर नहीं होते, ठीक है।
In India, the principle of separate property was best laid down in this case, Bachcha Gusdar versus CIT Bombay में Supreme Court ने कहा था कि shareholder is not a part owner of the company or its property. He is only given certain rights by law. For example, vote, attend meeting और receive dividends. इसी का ही right है, but ये owner नहीं है, part owner नहीं माने जाते. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. सी कंपनी में जो उनके पास शेयर्स होते हैं वो शेयर्स को इजीली ट्रांसफर करे जा सकते हैं, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आप शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे. One particular reason for the popularity of joint stock companies has been that their shares are capable of being easily transferred. और सेक्शन 44 में स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन करा भी क्या है. तो ये बोलते हैं कि a shareholder can transfer his shares to any person without the consent of other members. अपनी बिना दूसरे मेंबर्स के उस पे वो उसको बोल सकता है. Article of association even of the public company can put certain restrictions on the transfer of shares, but it cannot altogether stop it. Okay. Now the perpetual succession में मतलब ये है कि अगर कोई मतलब ये कंपनी irrespective of any illness, death, insolvency, retirement of the member, कुछ भी हो जाए, बट एक कंपनी हमेशा रहेगी एग्जिस्टेंस में. ठीक है. कंपनी being artificial cannot be incapacitated by illness, या फिर उसके पास कोई सेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, वो परपेचुअली रहेगी दुनिया में. ठीक है. तो इसमें बोलते हैं कि being distinct from the members, the death, insolvency or retirement of its member leaves the company unaffected. वो चलती रहेगी. Members may come and go, but the company can go forever. ये हमने सुना है बहुत बार. It continues even if all the human members are dead. And even during war, all the members of a private company, while in general meeting, were killed by a bomb. The company will still survive. Not even a hydrogen bomb could destroy it. तो कंपनी हमेशा रहेगी. ठीक है. हमारा नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है कॉमन सील. कंपनी देखो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो ऐसे तो उसको है नहीं कि ये कोई नेचुरल बीइंग हमारी बॉडी जैसे हम लोग है वैसे होती है, नहीं होती. तो इसको ना इसे कोई लिम्स है ना कोई माइंड है, तो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी. जो जैसे लीगल स्टिक्स है, ये अपने आप को एक्सप्रेस एक कॉमन सील के थ्रू करती है. ठीक है. इट हैज टू वर्क थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेमली डायरेक्टर्स हैं, अदर ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके थ्रू. सेक्शन 22 अगर हम पढ़ें तो सेक्शन 22 कहता है, जो अमेंडमेंट 2015 के थ्रू आता है, कि अ कंपनी में अंडर कॉमन सील इफ एनी थ्रू जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एम्पावर एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ. कंपनी अपने बिहाफ पे किसी भी डायरेक्टर को स्पेसिफिक या जनरल पावर दे देगी, बोलेगी कि आप अपने हिसाब से इस काम को करो, या तो इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया में. It further provides that the deed signed by such an attorney on behalf of the company and under his seal, where sealing is required, shall bind the company. Okay. Now criteria में आपका पार्टनरशिप एंड कंपनी आता है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आता है, आपका डिफरेंस ऑफ बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. और कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, तो वो समझते हैं. पहला क्राइटेरिया हमारा है प्रिवेलिंग लॉ पे. ये क्या कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप से रिलेटेड इस वाले पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और कंपनी से रिलेटेड आपको कंपनीज एक्ट 2013 पे जाना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन में क्या है, अगर पार्टनरशिप की बात होती है तो वो ऑप्शनल होता है, और अगर कंपनी की बात होती है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप रजिस्ट्रेशन तो करवाएं. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड विद द रजिस्ट्रार. आपको रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. क्रिएशन में है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है, और जो कंपनी है वो लॉ से क्रिएट होती है. ये एक क्वेश्चन आपका पीटी में आया हुआ है. The partnership is created by a contract, whereas a company is created by the law. Then distinct entity पे not a separate legal entity नहीं है, whereas हमने अभी पढ़ा कि ये separate legal entity होती है कंपनी. पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. इसमें मेंबर्स में मिनिमम देखो, जब प्राइवेट कंपनी में अगर हम देखें तो 2 से 50 जो मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी में, 2 मिनिमम होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे. और अगर हम ये प्राइवेट कंपनी की बात करें 2 to 50, और पब्लिक में 7 आपके मिनिमम रहते हैं, और मिनिमम 7 रहेंगे और मैक्सिमम कितने भी रहते हैं.
ओके, मैक्सिमम से 200 यहाँ पे आपका होता है। ओनरशिप ऑफ एसेट में क्या होता है, पार्टनर्स हैव जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल द एसेट्स बिलोंगिंग टू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स के पास जॉइंट ओनरशिप होता है सारे असेट्स का, जॉइंट। द कंपनी हैज, यहाँ पे कंपनी के पास ही जॉइंट ओनरशिप होता है, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास फॉर्म होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बिहाफ में एक्शन ले सकते हैं। Then is rights, duties and obligations of partners and directors. Partnership deed governs the right, duties and obligation of partners. Partnership deed बनती है जिसकी बेसिस पे उनके obligations वगैरह कवर हो होते हैं। देन इसमें क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। देन आपका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं जो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर पास करते हैं। उनमें जो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और रेजोल्यूशन में जो लिखा होता है, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज ऑब्लिगेशन सब उसी में ही मेंशन्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेम। यहाँ पे पार्टनरशिप आप एज पर चॉइस दे सकते हैं, नेम ऑफ द एंटिटी। यहाँ पे कंपनी नेम शुड कंटेन लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, लिमिटेड प्राइवेट में इफ इट इज प्राइवेट कंपनी एज अ प्रीफिक्स। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लीगल 6 है, तो ये लीगल 6 इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट एज अ सफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनरशिप में आपकी चॉइस होती है, इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सक्सेशन में क्या है, यहाँ पे देखो नो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, अगर पार्टनर्स हैं तो कंपनी है, ठीक है। और परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कंपनी में। द जॉइंट the members can freely come and leave the company, but company फिर भी प्रिवेल करेगी। ये केस आपका पार्टनरशिप में नहीं है। डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है इसमें, जो पार्टनरशिप यहाँ पे चार्टर डॉक्यूमेंट है, वेर एज पार्टनरशिप में और कंपनी में चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये इसके चार्टर डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं जिसमें सब कुछ कंपनी का पूरा प्रेएम्बल होता है। ये इसी तरीके से प्रेएम्बल एक पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होगा, एक होगा पार्टनरशिप डीड इज अ फॉर्म्स चार्टर दैट डिनोट्स क्या स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेगी। और इसी तरह से कंपनी पे जाए तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो कंपनी के चार्टर होते हैं, जो स्कोप एंड ऑपरेशन ऑफ कंपनी को डिफाइन करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज लाइबिलिटीज सबको डिफाइन करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप इनकम इज टैक्स इज फ्लैट 30% प्लस एजुकेशन सेस एज एप्लीकेबल, ये पूरा रहता है। कंपनी इनकम में टैक्स फ्लैट रेट 30% होता है, सर्च चार्जेस एप्लीकेबल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप जान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर इनहेरिटेंस राइट। तो कोई पार्टनरशिप में अनट्रांसफरेबल होता है। इफ द ओनर डाइज हिज और हर लीगल हेयर रिसीव्स द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द शेयर, सिंपल। और कंपनी क्या है, इजीली ट्रांसफरेबल होती है, हम कह उस कंपनी को उसने बाय कर दी, उस कंपनी को उसने बाय कर दी। यू ऑलवेज लिसन टू ऑल दैट, राइट। जस्ट अ मिनट। देन आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर। नो लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन एनी डिजिटल सिग्नेचर, पार्टनरशिप में कोई जरूरत नहीं होती। Whereas अगर हम कंपनी में करें तो एक डायरेक्टर मस्ट हैव डिजिटल सिग्नेचर टू साइन दी ई फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई फॉर्म को वो साइन करे इलेक्ट्रॉनिकली। द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर, की मैनेजर पर्सनल हमने देखा है, KMP की मैनेजर पर्सन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हायर एनी। पार्टनरशिप में आपको की मैनेजर पर्सन की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स जो होते हैं दो वो अपना ही काम खुद संभाल लेते हैं, 2 पार्टनर से 3 पार्टनर जितने पार्टनर है वो अपना काम खुद संभालते हैं। डायरेक्टर्स अपॉइंट कर जाते हैं अपनी हमारी कंपनी में जो ऑपरेशन संभालते हैं, और एक हेरारिकल सेटअप होता है यहाँ पे, ठीक है। वोटिंग राइट्स में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप अग्रीमेंट जिस तरह से लिखा है उस हिसाब से वोटिंग राइट्स मेंशन होता है या नहीं है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द शेयर्स द एसोसिएट्स होल्ड, उस हिसाब से उनके वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसके राइट्स उसके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा होगा। स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन करना या नहीं करना, इन पार्टनरशिप फर्म शुड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज टैक्स लॉस, एंड कंपनी में भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर, स्टैट्यूटरी रजिस्टर, अकाउंट्स, अपने मिनट्स, ये सब मेंशन करने पड़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में एनुअल फाइलिंग क्या है, तो पार्टनरशिप फर्म में कोई रिटर्न फाइल करने की आपको जरूरत नहीं है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स के पास आपको रिटर्न फाइल करने की पार्टनरशिप फर्म में जरूरत नहीं होती है।
ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपनी, तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एनुअली आपको ये फाइलिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप। और जब हम कंपनी की बात करते हैं, मैंडेटरीली कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी में ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पार्टनरशिप में क्या होता है कि अ पार्टनरशिप फॉर्म्स क्रेडिट वर्दीनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्टनर्स गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। जितना भी पार्टनर की गुडविल है उस हिसाब से क्रेडिट वर्दीनेस या गुडविल बनती रहती है ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ कंपनी में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर बहुत होता है। ठीक है। एंड डिफरेंट लॉज हैं, जिस वजह से हाई क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आपकी, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस कंपनी के केस में इतने सारे कंप्लायंसेस हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है, जैसे पॉश कंप्लायंस, वन ऑफ द पॉश ट्रेनिंग देना है आपको, तो वो आपको देनी पड़ती है। तो उस वजह से एक कंपनी की बहुत ज्यादा इमेज बन जाती है कि हाँ, इससे सारे इतने सारे कंप्लायंसेस हैं और कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी क्रेडिट वर्थ खुद अपने आप ही बहुत हाई बन जाती है। पर जब हम एक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कंप्लायंसेस की लिमिटेड कंप्लायंसेस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्दीनेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसाइड होती है? द वर्दीनेस ऑफ द पार्टनर्स देमसेल्व्स, उससे इसकी वर्दीनेस भी डिसाइड होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डेसोल्यूशन, मतलब एंड कैसे होता है। सी, एक पार्टनरशिप फॉर्म अग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व हो सकती है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसॉल्व होती है। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या दो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तब कोई कंटिजेंसी ऐसी आ गई जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म रन करना इम्पॉसिबल हो गया, या कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया, तो अगर इनमें से कोई है तो इन तरीके से एक पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, तो या तो वो वॉलंटरी बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, यही नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, यही इनकी ही ऑर्डर से ये रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी होती है। सो अभी तक हमने ये सारे कंपनी पार्टनरशिप और कंपनी के बीच के डिफरेंसेस पढ़े हैं, जिसमें से प्रिवेलिंग लॉ किसमें है, रजिस्ट्रेशन, टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पे डिफरेंस पढ़ा है, क्रिएशन पे डिफरेंस पढ़ा है, डिस्टिंक्ट एंटिटी पे हमने डिफरेंस पढ़ा है, नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड डिस्टिंक्शन पढ़ा है, नंबर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स पे, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, देन नेम ऑफ एंटिटी, सक्सेशन, चार्टर, डॉक्यूमेंट, टैक्स लायबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसफर इनहेरिटेंस राइट क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, वोटिंग राइट्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, annual filing, applicability of accounting standards, credit worthiness of the organization, and last में dissolution। इन सारे पॉइंट्स पे हमने आपके डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी को डिस्कस करा है। ये फाइल मैं आपको नोट्स में शेयर कर रही हूँ, जितने भी हम कर रहे हैं एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। आप इनको वापस से रेफर कर सकते हैं इन नोट्स को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज के सेशन का आता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इस सेशन का है, विच इज टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारे आ जाते हैं, जिसमें आपको समझना है कि हमारे प्राइवेट, पर्सनल, तो इसमें बेसिकली आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में जानना चाहिए, डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट से गवर्नमेंट हो गई, इनके बारे में तो आपको बेसिकली जानना ही चाहिए। सबसे पहले तो कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज आपका डिफाइन होता है। जब हम कंपनीज ऑन द बेसिस लाइबिलिटीज करते हैं, वी लुक एट द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसके बेसिस पे डिफरेंस आता है। अब कंपनी क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। नाउ समटाइम्स लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी एज वेल, दोनों भी हो सकती है, जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस करा है। ओके, सो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स को समझते हैं। Sometimes shareholder of some companies might not pay the entire value of their shares in one go, एक साथ में ही पूरी amount of shares नहीं पे करते हैं। In these companies, the liabilities of members is limited to the extent of the amount not paid by them on their share। तो ऐसी कंपनी में जितना वो पे नहीं करते, तो liabilities उनकी कितनी रहती है, is limited to the extent of the amount जो उन्होंने पे नहीं करा है अपने शेयर्स पे, उस अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी बनी रहती है, जो जहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, मेंबर्स विल बी लाइबल
only until they pay the remaining amount of shares. So they will be liable जब तक अपना remaining shares नहीं पे करते. अगर उन्होंने सारा remaining share पे कर दिया है तो उस के केस में they will be held, they won't be held liable anymore. Now companies limited by guarantee में क्या होता है, in some companies a memorandum of association जो हमारा होता है mention करता है कि amount of money that some members guarantee to pay, उसमें mention होता है कि इतने लोग तो member इतना amount of money तो ये पे करेंगे. जब वाइंडिंग अप का सीन आता है, दे विल बी लाइबल ओनली टू पे द अमाउंट सो गारंटी, जितना उन्होंने गारंटी करा है उतना ही अमाउंट के लिए वो पे लाइबल माने जाएंगे. और कंपनीज और जो क्रेडिटर्स हैं, दे कैन नॉट बी हेल्ड कंपेल, दे वोंट कांट बी कंपेल्ड टू देम टू पे any amount which exceeds the amount that they have guaranteed under the memorandum of association. जितना भी अमाउंट उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गारंटी करा है उससे ज्यादा अमाउंट वो नहीं पे करेंगे. इट्स दैट ओनली. ओके. नाउ the next is unlimited companies. Now unlimited companies have no limits on their members liability. उनकी कोई लिमिट नहीं है अनलिमिटेड कंपनी की कि कितना क्योंकि इट इज स्कोप ही नहीं है, अनलिमिटेड. तो जब तक सारा एक एक पैसा डेट का पे नहीं जाता तब तक उन मेंबर्स की लायबिलिटी बनी रहती है. ठीक है. हेंस द कंपनी कैन यूज ऑल पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू मीट इट्स डेट. ध्यान रखो कि पर्सनल एसेट्स की बात आ रही है वाइंडिंग अप के टाइम पे. तो इनकी लायबिलिटी कितनी होती है, एंटायर डेट, कंपनी के एंटायर डेट, जब तक पूरा एंटायर डेट इज पेड तब तक उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती रहेगी और वो पर्सनल एसेट्स पे उनके यूज कर सकते हैं कंपनी डेट्स को पे करने के लिए. ओके. द नेक्स्ट इज कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. अब कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्या है, यहाँ पे 1% होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है. ये कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स होता है. 1% में मैंने आपको बताया है कि इसमें 1% की ही जरूरत है. प्राइवेट पर्सन है, मिनिमम आपका प्राइवेट में आपका मिनिमम आपका कितना चाहिए होता है, 2 होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम 200 होता है. और पब्लिक में कितना होता है, पब्लिक में आपका 7 मेंबर्स मिनिमम होता है, अनलिमिटेड मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है. ये आपका बेसिस ऑफ मेंबर्स है. सो 1% कंपनीज, these kind of companies have only one member, एक ही मेंबर होता है एज ए सोल शेयर होल्डर. 1 मेंबर होता है जो सोल शेयर होल्डर कहलाता है. Now they are separate from the sole proprietorship, से अलग होते हैं because 1% companies जो होती हैं वो legal entities होती हैं which are distinct, which are different from their sole members. Now unlike other companies, 1% companies do not need to have a minimum share capital. उसमें उनकी minimum share capital की जरूरत नहीं होती है. Private companies की जब हम बात करें, private companies are those whose article of association restrict free transferable ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. मतलब मैंने आपको कंपनी में बताया था, कंपनी के वन ऑफ द फीचर और या फिर कैरेक्टरिस्टिक थी जिसमें अमाउंट ऑफ मनी को शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो वो रिस्ट्रिक्शंस आपकी प्राइवेट कंपनीज में ही करी जाती है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में मेंबर्स बहुत लिमिटेड होते हैं. सो द शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन. वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती हैं. In terms of members, private companies need to have minimum of 2 and maximum of 200. इतने तो आपको चाहिए. These members include present and former employees who also hold shares. Members क्या है, present और पुराने employees भी होते हैं जो अपने share को hold कर सकते हैं. ठीक है. Now public company क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, इन contrast to private companies, public companies allow their members to freely transfer their shares to others. वो अपने शेयर्स को दूसरों को ट्रांसफर करेंगे. Public companies allow their members to freely transfer their shares to others. Now, secondly, they need to have a minimum of 7 members, but the maximum can be unlimited. यहाँ पे देखो नंबर 1 पब्लिक कंपनी में जो डिफरेंस आपको समझना है, सबसे पहली बात तो आपका ये है कि मिनिमम ये प्राइवेट में है और ये पब्लिक में है. तो प्राइवेट में आपका मिनिमम नंबर है आपके 7
प्राइवेट में आपके 2 हैं, पब्लिक में आपके 7 होंगे, और 200 आपके प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर होते हैं, और अनलिमिटेड आपके होते हैं पब्लिक में। ये आपका वन सोर्स ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा आपका सोर्स ऑफ डिफरेंस हो गया कि प्राइवेट में जो शेयर्स होते हैं दे कैन बी ट्रांसफरेबल बट विथ रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज वन पॉइंट। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर्स जो होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल की बात हो रही है, तो दैट इज अ डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट इसमें आता है वो है अदर टाइप्स ऑफ आपकी कंपनीज हैं, जिसमें आपका आता है गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, चैरिटेबल कंपनीज एंड द लास्ट डोमेंट कंपनीज। तो जब हम गवर्नमेंट कंपनीज को पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं in which more than 50% of the share capital is held by either the central government or by one or more state government or jointly by central government or one or more स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे 50% जो शेयर कैपिटल होता है वो होल्ड करा जाए कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अगर ऐसे शेयर कैपिटल्स इन्होंने होल्ड करे होते हैं तो ये कहलाया जाता है एक गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है, ये आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट करी जाती है। दे ऑल्सो कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया यूजिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस ईदर बाय देमसेल्व्स और विद अदर कंपनीज। बिजनेस इंडिया में भी करते हैं या तो वो खुद ही या फिर अदर कंपनीज के साथ प्लेस ऑफ बिजनेस को यूज करते हैं। चैरिटेबल कंपनी क्या होता है, जो हमारे सेक्शन 8 में मेंशन्ड है। सर्टेन कंपनीज हैव चैरिटेबल पर्पस as their objectives. Now these companies are called section 8 companies. Charitable companies को जनरली अगर आप देखोगे ना तो एक सेक्शन 8 कंपनीज बोल जाते हैं, बिकॉज ये जो रजिस्टर होता है वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी दैट द कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। हम बोलते हैं ना द कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। द चैरिटेबल कंपनीज में ये भी है कि दे हैव द प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल कंपनीज हैव द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा एज ऑब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट होता है, सिंस नाउ इनको कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता तो दे ऑल्सो डोंट हैव टू पे एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स, उनको पे भी नहीं करना होता है। तो चैरिटेबल कंपनीज इस पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। डोमेन कंपनीज क्या होती हैं, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती हैं। ये इनके पास कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता और ना ही इनको सारे कंप्लायंसेस जो कंपनी के होते हैं उन्हें पूरे करने की जरूरत होती है, तो ये डोमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द इन ऑल द टॉपिक्स of today's session, which was definition of company, distinction between company and partnership, and types of companies. ये 3 हमने इसमें ये चीजें कवर करी हैं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये तीनों हमने कवर करे हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज विल बी क्विकली रिवाइजिंग व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन टुडेस सेशन। Now, what is a company? हमने समझा कि company, what have you understood about is that a company is nothing but an association of person, and all those people have come together to for a common object and basically to attain the profit out of the business that they have associated themselves for. Now, the purposes of these people may associate themselves of multifarious and includes economic as well as non-economic objectives, but in common parlance, the word company is normally reserved for those associated for economic purposes, जैसे कि to carry out a business like I told you, उनका purpose यही होता है। एक कंपनी पार्टनरशिप कंपनी भी हो सकती है और एक पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कंपनी, दो तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ये जो एसोसिएशन होता है इंडियन लॉ में दो तरीके के, दो मेन टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होता है इन एसोसिएशन का, या तो कंपनी फॉर्म करने के लिए या तो पार्टनरशिप के लिए। हमें डेफिनेशन में लॉर्ड लिंडले
और चीफ जस्टिस मार्शल एंड प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन समझी थी. एंड ऑल्सो वी रेड दैट सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट का ये डिफाइन करता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी. नाउ द पॉपुलर लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा था कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना मनी अपना यूज कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसके बाद वो एक प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और लॉस जो आता है उसको भी शेयर करते हैं साथ में, जो वो पीपल एसोसिएट कर रहे हैं एक साथ में. लॉर्ड जस्टिस मार्शल ने कहा था कि अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ. Being a mere creation of law, it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. Professor Haney कहते हैं, a company is an artificial person created by law, having separate entity with the perpetual succession and common seal. Next is characteristics feature of a company, and the most important characteristic feature of a company are separate legal entity of the company, and in most cases limited liability of its members. These and other characteristic features of a company are discussed below. Incorporated association, हमने कहा कि एक registered होनी चाहिए, company should be registered. It is very important that a company is registered. It is very important. Then the minimum number of नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज 7. हमने देखा कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है, एक अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए 200. अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है. सेक्शन 3 हमारा 1% कंपनी को भी डिफाइन करता है. लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर में हमने देखा दैट द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूटेड, हेंस वो दे आर केपेबल टू एंजॉय राइट्स अपने. Lord McNaughton puts it that उन्होंने ये कहा था कि different person साथ में आते हैं और सब्सक्राइबर्स वो डिफरेंट है, कंपनी और सब्सक्राइबर्स उसके या मेंबर्स ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है. ठीक है. आर्टिफिशियल पर्सन मैंने पढ़ा कि कंपनी एक ज्यूरिस्टिक मेंबर है, बट उसको अपने काम कराने के लिए नेचुरल पर्सन पे डिपेंड करना पड़ता है. और नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन में कौन फॉल करता है? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब फॉल करते हैं, उनके थ्रू से काम करना पड़ता है और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. लिमिटेड लायबिलिटी में पढ़ा कि जितना कोई शेयर होल्ड करता है उसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस या डेट्स के टुवर्ड्स उसकी उतनी प्रॉफिट उतनी लायबिलिटी बन जाती है. कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय लिमिटेड शेयर्स होती हैं, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं, कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं और कुछ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स दोनों ही होती हैं. तो उस हिसाब से हमने लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था. तो वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज इसमें हमने समझा था. सेपरेट प्रॉपर्टी में एक आता है कि कंपनी मतलब ये सेपरेट होता है, जो शेयर होल्डर्स उसके शेयर को होल्ड तो करते हैं बट वो उसके ओनर नहीं कहलाए जाते हैं. दे आर नॉट दी ओनर, बट उनको बस सर्टेन राइट्स दे दी जाते हैं, जिसको बोलते हैं राइट टू वोट. अब जितना किसी का वोट की राइट उसको इतनी इंपॉर्टेंस हो जितने उसने शेयर होल्डर होल्ड करे हैं, उस हिसाब से उसकी वोटिंग राइट उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. ज़्यादा तो ज़्यादा वोटिंग राइट्स, कम तो कम वोटिंग राइट्स, या फिर सारी जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करने का राइट होता है. और जो डिविडेंड रिसीव करते हैं उनको भी. अब 1% कंपनी में आपको कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज शेयर ट्रांसफरेबिलिटी. शेयर ट्रांसफरेबिलिटी में अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फ्री होता है, बहुत ही फ्री शेयर ट्रांसफर हो जाता है. बट अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, ऑल्दो ट्रांसफर हो सकते हैं. What we have read is one particular reason for the popularity of joint stock companies has been that their shares are capable of being easily transferred. And the Act in the section 44 echoes the same, talks about the same features, that the companies are only liable to the extent company share can be easily transferred. But there comes a difference if it is a public company or a private company. So, a share, debenture, or the other interest of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the Article of Association Company. The shareholder can transfer his rights to any person without the consent of other members, and the Articles of Association, even of a public company, can put certain restrictions on the transfer of shares, but it cannot allow altogether stop it. Perpetual succession में हमने ये समझा था, what have we understood about that company? If the members, owners, shareholders, they can come and go.
they may die. It could happen anything. You can put a bomb in a company and yet the company will survive. So that perpetual succession means you cannot make a company, incapacitate a company by any of the factors. For example, illness, or you cannot allot a span of life to the company as well. The next is common seal. Now, a company being an artificial person is not bestowed with the body of a natural being. Therefore, it does not have a mind or limbs of human being. It does not have that. Now, it has to work through the agency of human beings, namely the directors and other officers and employees of the company. Section 22 जो हमारा Companies Act का है, 2015 अमेंडमेंट का है, उसमें कॉमन सील को बात करिए कि उसके थ्रू जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को एक्सरसाइज करता है. ओके. नेक्स्ट इज कंपनी एंड पार्टनरशिप में आपको प्रिवेलिंग लॉ क्या होता है कि कंपनी में पार्टनरशिप में प्रिवेलिंग लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और कंपनी में प्रिवेलिंग लॉ कंपनीज एक्ट 2013 है. ठीक है. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन में पार्टनरशिप ऑप्शनल है. कंपनी में रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. क्रिएशन में पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट करी जाती है और वेयरएज कंपनी में पार्टनरशिप लॉ के थ्रू क्रिएट करी जाती है. देन आपका डिस्टिंक्ट एंटिटी में पार्टनरशिप के पास कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, वेयरएज कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में. देन द नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में 2 पार्टनरशिप में 2 मिनिमम और 20 मैक्सिमम होने चाहिए. वेयरएज कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मिनिमम और 200 मैक्सिमम होते हैं. ये जो आपका नंबर लिखा है थोड़ा गलत है, यहाँ पे 50 नहीं होता है, ये 200 होता है. और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 है और मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड है. मैक्सिमम कोई नंबर नहीं होता, अनलिमिटेड है. ठीक है. ओनरशिप असेट्स में पार्टनर्स हैव जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल दी असेट्स बिलोंगिंग टू द पार्टनरशिप फर्म. एंड जो हमारा कंपनी है उसमें द कंपनी हैज ओनरशिप ऑफ असेट. उसमें कंपनी का असेट होता है, ओनरशिप होता है असेट्स पे, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स का ओनरशिप होता है असेट्स पे. राइट्स एंड ड्यूटीज में पार्टनरशिप डीड्स में जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती है वही चलेंगी, वही मानी जाएंगी. और कंपनीज में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी सबके राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं उस हिसाब से ऑब्लिगेशन को फुलफिल करा जाएगा. एंटिटी का अगर नेम लेना है तो पार्टनरशिप फॉर्म में एज पर चॉइस होता है और कंपनी में एज पर द पब्लिक एज पर द नेचर ऑफ द कंपनी होता है. इट इज it's public company then वो mention करना पड़ेगा. company name should be limited in case of public company. इसे limited by share, limited by guarantee, इस तरह से unlimited liability company इस तरह से करना पड़ेगा. और private if it is a private company as a suffix, मतलब private, जैसे Lysys Private Innovations Private Limited ऐसे करके. सक्सेशन में पार्टनरशिप के पास कोई सक्सेशन नहीं होता. अगर पार्टनर्स ही नहीं है तो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म भी गई. बट ऐसा केस कंपनी में नहीं है. पार्टनरशिप सक्सेशन एग्जिस्ट करता है, परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है. मेंबर्स कैन लीव एंड दे कैन आल्सो कम बैक बट द कंपनी विल स्टे. चार्टर डॉक्यूमेंट अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म में देखें तो पार्टनरशिप डीड होती है. उसमें सारा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, पार्टनर्स की जो राइट्स हैं, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस वो उसमें मेंशन होता है. कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें ये सब चीजें मेंशन्ड होती हैं. देन आपका ट्रांसफर एंड इनहेरिटेंस राइट दिया है, एंड ट्रांसफरेबल होता है. इफ द ओनर डाइज देन जो उस ओनर के एयर्स होते हैं उनको वो फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द शेयर मिल जाती है. और कंपनी में तो इजीली ट्रांसफरेबल होता है, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं. डिजिटल सिग्नेचर में नो लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन एनी डिजिटल सिग्नेचर, बट एक डायरेक्टर के पास अपने डिजिटल सिग्नेचर जरूर होने चाहिए ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी के केस में. रिक्वायरमेंट ऑफ की मैनेजर केएमपी में हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में केएमपी की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स मोदन अगर तो हैं तो सारे पार्टनर्स ही अपना काम संभालते हैं खुद से. वेयरएज कंपनी में डायरेक्टर सारा काम संभालता है और वहाँ पे हायरार्किकल सेटअप भी होता है. या वोटिंग राइट्स में डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट किसके हैं. और यहाँ पे कंपनी में देखोगे तो कंपनी के टाइम में जिसके जितने शेयर्स हैं उस साथ उसके वोटिंग राइट्स डिसाइड होते हैं. कंपनी पार्टनरशिप फर्म को अपना बुक्स को टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली अपना अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा. और हमारे कंपनी में दे शुड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन मिनट्स एक्सेट्रा. तो उनको भी एनुअली करना ही पड़ता है. एनुअल फाइलिंग हमारी पार्टनरशिप में जरूरत नहीं है, एनुअल फाइलिंग हमारी कंपनी में जरूरत है.
No accounting standards are applicable in partnership, whereas mandatory compliance is required in the company. आपको सारी compliances fulfill करने पड़ेंगे. Creditworthiness पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की गुडविल जितनी है उस हिसाब से क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ द पार्टनरशिप बनती है. बट इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी के कंप्लायंसेस इतने सारे होते हैं तो उन कंप्लायंसेस को फुलफिल तो करना ही है, तो उस बेसिस पे कंपनी के कंप्लायंसेस उस हिसाब से बन जाते हैं और इस वजह से क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है. डिसोल्यूशन में क्या होता है, किस तरह से कंपनी को पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. इट कुड बी थ्रू एग्रीमेंट, या म्यूचुअली कंसेंट है पार्टनर्स का, या इंसॉल्वेंसी हो गई है, या कोई फ्यूचर कॉन्टिजेंसी हो गई है, या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो बेसिस पे डिसोल्यूशन हो जाएगा. बट अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो वॉलंटरी, ये एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद ही होगा. टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने कंपनी बाय द लायबिलिटीज पढ़ा, जिसमें हमने लिमिटेड बाय शेयर पढ़ा. शेयर में जिसके जितने शेयर उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी प्रीफिक्स हो जाती है. देन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स है. समटाइम शेयर होल्डर्स जो कंपनी है कि जितना उनके पास है, पूरे शेयर होल्डर्स ने सारे शेयर्स को पैसे पे नहीं करे होंगे, तो जितने नहीं पे करे उतने ही लेवल पे वो लायबल रहते हैं. तो जब उन्होंने पे कर दिया तो उनकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है. तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जितनी अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है, तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे उस अमाउंट तक के लिए ही वो पर्सन अपना कंपनी जो क्रेडिटर्स हैं उनको लायबल बनाया जाएगा. सॉरी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको उस हद तक ही लायबल बना सकता है. अनलिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि कोई लिमिटेड कंपनीज के पास कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स के लिए, इसलिए दे कैन यूज ऑल पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू मीट हिज डेट्स व्हाइल वाइंडिंग अप, एंड देयर लायबिलिटीज विल एक्सटेंड टू द कंपनीज एंटायर डेट. ठीक है. फिर हमने बेस नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कंपनी डिवाइड किया. 1% कंपनी है तो एक रहेगा, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मिनिमम, मैक्सिमम 200, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 मिनिमम, एंड अनलिमिटेड मैक्सिमम, अनलिमिटेड मैक्सिमम. ठीक है. और प्राइवेट कंपनी में बस एक और भी चीज़ है कि शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहता है. जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो शेयर जो होते हैं मेंबर्स के वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं. अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने 4 टाइप कंपनी पढ़ी थी: गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड डोमेन कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी में ये होता है जिसमें 50% ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी आर होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दी वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये अलग अलग, या फिर जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. फॉरेन कंपनीज में क्या होता है, जो बाहर आउटसाइड इंडियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, वो अपना बिजनेस तो इंडिया में कंडक्ट करते हैं यूजिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस ईदर बाय देमसेल्फ और विद सम अदर कंपनी. चैरिटेबल कंपनीज जो बोलते हैं उनको हम सेक्शन 8 कंपनीज ही बोलते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होता है. और चैरिटेबल कंपनी में क्या होता है, वो कोई प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है, तो इस वजह से उनको कोई डिविडेंड अपने मेंबर्स को पे भी नहीं करना पड़ता. और इनमें कंपनीज क्या होती हैं, ये प्रमोशन करती हैं आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा. इनका ये ऑब्जेक्ट होता है. डोमेन कंपनी किसी फ्यूचर पर्पज के लिए बनाई जाती है और उसकी वजह से उनको कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती और ना ही उन्हें और कोई कॉम्प्लाइंसेस भी फुलफिल करने पड़ते हैं. ठीक है. सो दीज हमने इसको रिविजन कर लिया है ये पूरा. सो इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द next session, and in next session let me tell you what we will be covering. In next session we'll be covering the steps of incorporation or steps of registration of a company. Then we will be covering 3 topics, that is memorandum of association, article of association, and doctrine of ultra vires. ये सारे concepts को हम कल cover करेंगे. So that's it for today. If there's any doubt, so please you can you can obviously contact us at LegalSticks. एंड आपके सारे सेशन के नोट्स अब को प्रॉपरली हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, और इनफैक्ट अपने आपके कोर्स पे ही, कंपनी लॉ के कोर्स में ही आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी नोट्स एज वेल. सो विद दिस आई एंड टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच.